Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So in this video we are going to cover up question number 21 to question number 30. In case you are new here, my name is Anshita and we have covered a lot of MCQs and case scenarios, and we have in fact completed all the case scenarios and MCQs of audit. If you want to watch those videos, please check out the description box below. So let's begin with question for number 21 for today. Question number 21. CK Limited was incorporated on 25th of June 2018. So this is a company which is a public company. Incorporation हुआ 25th of June 2018 को. CK Limited wants to make donations to political party. Donations to political party section 182. It wants to know when can it make such donations to political party. सेक्शन 182 क्या कहता है? सेक्शन 182 बोलता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को कितने भी अमाउंट का डोनेशन कर सकते हो. देयर इज नो इशू, आपको सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, ठीक है. बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि अगर कंपनी को बने हुए अभी तक 3 फाइनेंशियल ईयर्स भी नहीं हुए हैं, मतलब उसकी इनकॉर्पोरेशन से अभी तक 3 फाइनेंशियल ईयर्स भी पास नहीं हुए हैं, एंड या फिर वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, नॉट एंड बट और इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, देन इन दैट केस the provisions of this section will not be applicable, that is they cannot make the political contributions. अच्छा, अब इस केस में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 2018 में, गवर्नमेंट कंपनी का ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया हुआ, तो अगर इसको कंट्रीब्यूट करना है तो ये कब कर सकती है? आफ्टर दी 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शंस. आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 3 years. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? सी. डायरेक्ट क्वेश्चन था. The next question, question number 22, where at any time the number of interested directors exceeds or is equal to the total strength of the board of directors, the quorum shall be the number of non-interested directors who are present at the meeting, but they should not be less than 2. Section 173 क्या बोलता है कि अगर 2/3 या 2/3 से ज़्यादा इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हो जाते हैं तो इस केस में नॉन इंटरेस्टेड वाले ही आपके कोरम फॉर्म कर लेंगे. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं वो 2 से भी कम है, तो एटलीस्ट तो 2 होने चाहिए. सो यहाँ पर क्या होगा? 2/3. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. इन केस ऑफ अ कंपनी वेयर मिनिमम -% मेंबर्स इन नंबर are relatives of promoters or are related parties, they are not precluded from voting on a resolution for approving any related party transaction. तो इसके लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. 90% होता है, सेक्शन 188 बताता है, तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. Out of the total strength of 6 directors of SQ Limited, 5 are attending a board meeting to consider the investment of funds. Section 186. The resolution relating to investment shall be taken as passed in which of the following cases. तो इस केस में आपको पता होगा बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए होता है. यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सबको ही वोट करना पड़ेगा, सबको ही अग्री करना पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर आप देखो देयर वर टोटल 6 डायरेक्टर्स, बट 6 में से 5 ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो 5 के 5 को अग्री करना पड़ेगा. सो व्हेन ऑल द 5 डायरेक्टर्स अटेंडिंग द मीटिंग कंसेंट टू इट, व्हेन 4 डायरेक्टर्स आउट ऑफ 5 नो, 3 directors out of 5 no, investment proposal must be consented to by the total strength. No, total strength नहीं देखते, present and voting members देखते हैं, present and voting directors देखते हैं. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. In case of a board meeting which is conducted through the means of video conferencing, the draft minutes shall be circulated among all the directors within a period of 15 days होता है, within a period of 15 days of the meeting, either in writing or in electronic mode as may be decided by the board. So let's see what options are given. Okay, so this is the correct answer. काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट कमिटी में मेक ऑमनिबस अप्रूवल फॉर. ऑमनिबस अप्रूवल किसके लिए लिया जाता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए. सो मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, ट्रांसफरिंग ऑफ नॉन फंक्शनल अंडरटेकिंग. नो, ऑमनिबस अप्रूवल किस लिए लिया जाता है? For the related party transactions which are proposed to be entered into by the company. ठीक है, next, which of the following points is not related to omnibus approval made by the audit committee? Not related बताना है. Audit committee shall consider the repetitiveness of the transactions in past or future. बिल्कुल ठीक है. The indicative base price or current contracted price and the formula for variation in price. बिल्कुल ठीक है.
Omnibus approval shall be valid for a period not exceeding 1 financial year and shall require fresh approval after the expiry of such financial year. बिल्कुल ठीक है. Omnibus approval shall not be made for the transactions in respect of selling or disposing of the undertaking of the company. बिल्कुल ठीक है. बताओ, सारे ऑप्शन सही हैं और पूछ रहे हैं कि नॉट रिलेटेड टू ऑमनिबस अप्रूवल कौन सा वाला है. इस क्वेश्चन में गलती है. इस क्वेश्चन का जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है ना, इन्होंने आंसर दिया हुआ सी. ये सी आंसर तब होता जब यहाँ पर पीरियड 1 ईयर ना लिखकर ये कुछ और लिखते, अदर देन 1, क्योंकि 1 ईयर तो ठीक है, तो अदर देन 1 के केस में हमेशा हमारा आंसर सी होता. तो यहाँ पर गलती है क्वेश्चन के अंदर. सो ऐसे ही है, बस क्या करें. तो इंस्टीट्यूट ने आंसर सी दिया हुआ है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास. मेरे हिसाब से सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये अगर 1 नहीं होता या कुछ और ऑप्शन दिया होता तो ये आंसर सही होता. इस केस सिनेरियो में तो सारे के सारे ही सही हैं ऑप्शंस. ठीक है, अब आपका कॉल है, आपको क्या करना है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28. मिस्टर एक्स, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इंटीमेटेड हिज पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन August 2010. नॉट 2010. मिस्टर एक्स डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन इंटीमेट कर दी मीटिंग के लिए जो कि स्केड्यूल्ड थी ऑन August 2018. He declared his participation through electronic mode in April 2017. मीटिंग कब हो रही है? August 2018 में. इन्होंने पार्टिसिपेशन डिक्लेयर कब करी है? एक्सक्यूज मी, April 2017 में. State whether Mr. X is entitled to participate in the meeting to be conducted in August 2018. प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन कहता है कि बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर में डिक्लेरेशन देनी पड़ती है एंड दैट डिक्लेरेशन इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो इस केस में देखें तो उन्होंने April 17 में दी थी डिक्लेरेशन, तो April 17 के लिए वो वैलिड होनी चाहिए थी, April 18 के लिए तो वैलिड नहीं होगी. तो इसीलिए सिंस द ईयर ऑफ गिविंग डिक्लेरेशन इज डिफरेंट, इस केस में क्या होना चाहिए? इंटीमेशन वैलिड नहीं रहनी चाहिए. पर यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन है येस द इंटीमेशन अबाउट सच पार्टिसिपेशन वाज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर. भाई कहाँ से? कैलेंडर ईयर भी तो देखो, कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? Jan to दिसंबर. यहाँ बंदा कर रहा है अप्रैल में और दैट टू 2017 में. तो ये इस साल में आप जब भी इंटीमेशन दोगे दैट विल बी वैलिड फॉर दैट कैलेंडर ईयर ओनली. नो, बिकॉज द इंटीमेशन वॉज मेड इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर. येस, बिकॉज द कंपनी वॉज इंटीमेटेड. तो येस वाले ऑप्शन तो आपकी गलत ही हैं. नो, बिकॉज वैलिड पीरियड फॉर डिक्लेरेशन दैट इज 1 ईयर ऑफ हिज पार्टिसिपेशन एक्सपायर्ड. देखो इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू आ रहा है. आप मुझे बताना क्या चीज़ सही होनी चाहिए. ठीक है, इस इंस्टीट्यूट का आंसर है डी. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बी आंसर क्यों ठीक लग रहा है, मेरा क्या इंटरप्रिटेशन है जिसकी वजह से मैं बी आंसर बोल रही हूँ. प्रोविजन कहता है कि आपको बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर में इंटीमेट करना होता है एंड दैट इंटीमेशन इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स या फिर फॉर 1 ईयर. अगर मैं यहाँ देखूँ इन्होंने ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया है? इन्होंने इसलिए बनाया है कि 1 ईयर तक वैलिडिटी तब रहेगी ना, अगर मैंने जनवरी में डिक्लेरेशन फाइल कर दी तो ये मेरे पूरे कैलेंडर ईयर के लिए वैलिड रहेगी डिक्लेरेशन. ठीक है, इसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर उन्होंने बनाया होगा प्रोविजन. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. अब अगर वो बंदा अप्रैल 2017 में डिक्लेरेशन फाइल कर रहा है तो क्या इससे हम ये मान लें कि सिंस वो 1 साल तक के लिए एप्लीकेबल होती है तो अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक ही वैलिड होगी? ऐसे तो फिर वो कभी भी अपनी डिक्लेरेशन जनवरी में फाइल ही नहीं करेगा. वो तो कभी भी फाइल कर सकता है. उसको लगता है नेक्स्ट ईयर भी मीटिंग मार्च में होने वाली है और इस साल मीटिंग अप्रैल में होने वाली है, तो वो अप्रैल में ही इंटीमेशन देगा या डिक्लेरेशन देगा और अप्रैल टू मार्च के लिए एक ही डिक्लेरेशन से काम हो जाएगा. ऐसा हो सकता है. पर प्रोविजन का तो फिर प्रोविजन तो डिफीट हो गया. प्रोविजन क्या कहता है? बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर में देना है एंड दैट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर. 1 ईयर का मतलब इसीलिए निकाला था कि उस पूरे कैलेंडर ईयर के लिए वो वैलिड रहेगा. बट यहाँ तो उसने 2017 में इंटीमेशन दिया है तो 2018 में तो उसको फिर से इंटीमेट करने की जरूरत होनी चाहिए थी ना. इन्होंने जो रीजन दिया वो ये कह रहे हैं कि सिंस अप्रैल से मार्च तक की मीटिंग होती तो ये डिक्लेरेशन वैलिड थी, बट सिंस मीटिंग अगस्त में हो रही है इसीलिए ये डिक्लेरेशन वैलिड नहीं है. बट मेरा व्यू ये कहता है कि प्रीवियस कैलेंडर ईयर में उसने डिक्लेरेशन दी थी तो वो उसी साल के लिए वैलिड थी, इस साल के लिए वैलिड नहीं हो सकती. इस वजह से यहाँ पर आंसर नो है.
तो हमारा जो रीजंस हैं वो मैच नहीं कर रहे। तो अगर आपको लगता है कि डी आंसर होने के वैलिड रीजंस हैं, आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं या फिर कुछ कॉन्टेक्स्ट है जिससे कि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आ पाए कि आंसर डी क्यों होना चाहिए, बी क्यों नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताना, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव माई प्रोसेस ऑफ थाट्स एंड थॉट प्रोसेस थोड़ा इम्प्रूव होगा इससे। तो प्लीज़ मुझे भी बताना अगर ऑप्शन डी सही है और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड या इसके लिए आपने कहीं कुछ पढ़ा भी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो मैंने आपको अपना स्टैंड बता दिया कि मेरे को बी क्यों लगता है। आप मुझे प्लीज़ बताना अगर आपको लगता है डी ही करेक्ट आंसर है तो डी क्यों करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो यहाँ पर भी मेरा और इंस्टीट्यूट का व्यू मैच नहीं कर रहा, तो ठीक है, ये मैंने आप पे छोड़ दिया, अब आप थोड़ा सा हेल्प करना। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29। सी फूड लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी incorporated on 1st of April 2016, the company has conducted 4 board meetings during the financial year 2016-17, that is on 6th of April 2016, 28th of August 2016, 30th of September 2016 and 30th of March 2017. Describe or decide the validity of the frequency of board meeting. तो board meetings जो होनी चाहिए वो minimum 4 होनी चाहिए in the financial year, in the calendar year. अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली मीटिंग हुई है 6 ऑफ अप्रैल को, दूसरी मीटिंग हुई है 28 अगस्त को, तीसरी मीटिंग हुई है 30 सितंबर को और लास्ट मीटिंग हुई है 30 मार्च को। अगर आपको पता हो, एक प्रोविजन कहता है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स शुड नॉट बी मोर देन 120। ठीक है, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 120 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम गैप देखें, यहाँ पर हम गैप देखें और यहाँ पर हम गैप देखें तो दिस इज ऑब्वियसली लेस दैन 120, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगस्त में मीटिंग हुई, फिर सितंबर में मीटिंग होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस मीटिंग को अगर आप देखो तो टोटल आपके 4 महीने से भी ज़्यादा का गैप है, तो आपका मोर देन 120 डेज का गैप आ रहा है, जिसकी वजह से देयर इज अ इशू, कंप्लायंस नहीं हो रहा सेक्शन का। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ सितंबर से मार्च ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, मोर देन 120 डेज का गैप है, तो यहाँ पर कंप्लायंसेस नहीं हो रहे। सो देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन, तो गलत है, नो कॉन्ट्रावेंशन गलत है, देर इज अ कॉन्ट्रावेंशन ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या पता एक ही ऑप्शन से काम चल जाए। तो देर इज अ कॉन्ट्रावेंशन, ये भी ठीक है। अब हमें रीजनिंग चेक करनी है। ठीक है, सी ऑप्शन पढ़ते हैं। देर इज अ गैप इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स एज अ गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स, दैट इज 6th of April 28th August। हमने भी यही कहा था कि इस वाली मीटिंग में गैप बहुत ज़्यादा है और इन दोनों मीटिंग्स में गैप बहुत ज़्यादा है। is 143 days and the gap between the 2 consecutive board meetings, that is 30th of September and 30th of March, is 181 days। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हम इसके डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, और क्योंकि देखो ना इसमें दिया हुआ है 143 डेज एंड 181 डेज, और इसमें अगर हम डेज चेक करें तो यहाँ पर डेज दे रखे हैं 123 डेज एंड 141 डेज। तो एक चेक कर लेते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली दूसरा भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर मैं ये वाला कैलकुलेट करूँ 30th of September से 30th of March, तो मेरा हो गया सितंबर से अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज, जनवरी 31 डेज, फरवरी में 28 डेज, लीप ईयर नहीं है, मार्च में 30 डेज। कंप्यूट करो कितना आ रहा है, 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 30, 181 डेज। ये वाला सही हो गया आपका ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। 143 आ रहा होगा, इसका ही कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर एक सही आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल गया ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 30। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेरीवेल लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है, ठीक है, wants to contribute 60,000 to charitable organization, section 181, during the financial year 17-18. During the financial year 15-16, the company suffered losses. Okay, the directors are contemplating to contribute the said amount in spite of the losses. In this connection, state whether the board of directors can contribute to the charitable organization. तो provision क्या कहता है, provision कहता है कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का आप एवरेज नेट प्रॉफिट ले लो। ठीक है, इस एवरेज नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो 5% से। ठीक है, अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो अप टू दिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
लेकिन अगर इससे एक्सेस है तो आपको जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 16-17 में वो 16-17 नहीं 17-18 में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, बल्कि 15-16 में लॉसेस थे, पर हमें इन्होंने पूरे 3 सालों के प्रॉफिट्स नहीं बताए। अगर 1 साल में लॉस था तो 2 सालों में क्या था वो ऐसा कुछ नहीं बताया। हमें तो एवरेज नेट प्रॉफिट करके कैलकुलेशन करके चेक करना था ना। चलो, लेकिन रीज़न क्या बोल रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉसेस, कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हमें कंट्रीब्यूट करना है। तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये वाली प्रोविजन सेक्शन 181 का कंप्लायंस हो रहा हो। उसके लिए डिटेल्स दी नहीं हुई हमें। तो सिर्फ लॉसेस होने की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ प्रोविजन है क्या? नहीं। तो हमें एवरेज देखना होता है। तो इसीलिए नो वाला आपके ऑप्शंस क्या हो गए? गलत। Yes, very well limited can contribute 60,000 to a charitable organization in spite of losses in 15-16 provided it is to the bona fide charitable fund। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ लॉसेस के रीजन से आप ये नहीं कर सकते कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हमें तो पूरा प्रोविजन सेक्शन 181 का कंप्लायंस देखना होता है फाइनेंशियल ईयर्स में। और फाइनेंशियल ईयर्स में हो सकता है ना 15-16 में लॉस था, पर बाकी के 2 फाइनेंशियल ईयर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था, जिसकी वजह से एवरेज करने के बाद 5% करें तो वो 60,000 से कम आ रहा था। ज़्यादा भी आ रहा था तो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो सकता है पास भी हो जाता। तो उसके लिए तो हमें पूरा को पूरा सेक्शन 181 ही कंप्लाई करना होगा। लॉसेस की वजह से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ऐसा कोई भी सेक्शन में कुछ पॉइंट नहीं दिया हुआ। ठीक है, सो दैट इज वाई येस दे कैन कंट्रीब्यूट। सो करेक्ट आंसर इज डी। आई होप यू हैव मार्क्ड द क्वेश्चंस विच यू अटेम्प्टेड इनकरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको फिर से उसको रिवाइज करने की बिल्कुल ज़रूरत है। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं कि आप मुझे बताओगे कि आपका क्या व्यू है उस पर, या फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है तो मुझे प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी थोड़ी सी हेल्प होगी। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस, थम्स अप दे दो, शेयर कर लो फ्रेंड्स के साथ, एंड न्यू हो चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।